Good morning, my dear students. I hope you all are fine. And after a long time, the school has opened. You might have enjoyed the puja holidays, but now the time has come to study. So today I will be taking your grammar lesson in English, and this is lesson 1, determiners. So are you all aware of this word determiner? Are you all aware? Do you all know? Have you heard this name, determiner? Determiner is in your syllabus, in your CBSE syllabus provided by CBSE. So you have to study the first lesson, determiner, and I will give a detailed explanation of this lesson, determiners. Okay, so let's proceed. This grammar lesson begins with what are determiners? Determiners क्या है? Determiners are words which help to determine something. ये शब्द होता है जो कि डिटरमिन करने का काम करता है. डिटरमिन मतलब कैसा है कोई भी चीज, कितना है, बोलते हैं ना, कैसा है कोई भी चीज कितना है. सो बेसिकली डिटरमिनर्स डिटरमिन अ नाउन. एक नाउन या नाउन फ्रेज को डिटरमिन करने का काम आता है डिटरमिनर. ओके, सो यू सी ऑन द स्लाइड व्हाट आर डिटरमिनर्स. Determiners are words placed before a noun phrase to indicate what a noun refers to. So basically, I want to tell you, determiners are words which are placed before a noun phrase or before a noun. ये noun से पहले या noun phrase से पहले इसको लगाया जाता है, इस determiner को. क्यों लगाया जाता है? To determine a noun or a noun phrase. Determiner comes from the word determine, means to determine something. As I have told you, it has taken from the word determine. Determiners, I mean this word has been taken from the word determine, means to determine something. मैं ऐसा पता लगाते, कैसे कुछ पता लगाते हैं, वो कोई भी चीज कैसा है, कितना है, how many, how much of a thing. So determiners helps to know all these things. Okay, determiners always talk about nouns, the name of a place, person or thing. Determiners क्या बताता है? पहले ही मैं बोल चुका हूं. It comes before a noun or a noun phrase. So determiners, they always tell about nouns and the name of a place, person or thing. We use determiners basically before a noun or a phrase. So determiners का हम लोग कब यूज करते हैं? Before a noun or a phrase. So this is basically the definition of determiner. So once again you see, determiners are words placed before a noun phrase to indicate what a noun refers to. Noun phrase से पहले लगता है. Phrase मालूम है? Phrase is a part of a sentence. जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, फ्रेज किसको बोलते हैं? जस्ट सी दिस सेंटेंस, ही सैट इन अ कॉर्नर. ये एक सेंटेंस है. इन ए कॉर्नर क्या हो गया? ये फ्रेज हो गया. दिस बिकम्स अ फ्रेज. ओके, फिर फ्रेज कितने प्रकार का है? नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है. लेकिन हम लोग को बेसिकली डिटरमिनर जब अध्ययन करना है तो नाउन फ्रेज के बारे में जानना है. ओके, हमारी जानकारी होनी चाहिए नाउन फ्रेज के बारे में. तो फ्रेज क्लियर हो गया. इट्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच
does not give complete meaning, okay, which gives us an incomplete meaning, okay. तो सेंटेंस पूरा यूज होगा तभी सेंटेंस का मीनिंग पता चलेगा. खाली इन ए कॉर्नर हम अगर बोले तो इसका कोई मीनिंग पता नहीं चलता है, अधूरा, इसका अर्थ जो निकलता है अधूरा रहता है, ओके. सो डिटर्मिनर्स टॉक अबाउट नाउन्स. नाउन्स के बारे में जानते हो. नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग, ओके, और एनिमल. नेम ऑफ ए पर्सन है तो एनिमल भी, नेम ऑफ एनिमल ऑल्सो कम्स ओवर देयर, ओके. सो बेसिकली नाउन या नाउन फ्रेज के पहले डिटर्मिनर्स का यूज होता है. तो आप लोगों को याद रखना है, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट आर बेसिकली यूज्ड बिफोर अ नाउन or a noun phrase, okay, and it is used to determine something. It is used to determine about a noun. पता लगाता है नाउन के बारे में, ठीक है, स्ट्रेस देता है. It gives stress on the word used before a noun, okay. उस नाउन के बारे में पूरी जानकारी देता है डिटर्मिनर्स, ओके. जैसे हम अगर बोले गुड बॉय, अगर मैं लिखता हूं यहां गुड बॉय, गुड बॉय क्या है, गुड क्या हुआ, गुड इज एडजेक्टिव, बॉय इज नाउन. अगर इससे पहले लगाते हैं ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, ए इज बेसिकली एन आर्टिकल. तो हम डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. दे आर द टाइप्स ऑफ व्हेन आई विल बी टीचिंग यू टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, आई विल बी टीचिंग अबाउट आर्टिकल्स ऑल्सो. तो यहाँ आर्टिकल आ गया है ए गुड बॉय. ए गुड बॉय मीन्स एक अच्छा लड़का. तो ए जो है ये दिस इज डिटर्मिनर. क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? नाउन फ्रेज क्या है? यू मस्ट नो. नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स noun phrase is a group of words with noun acting as the main part. noun phrase क्या है? ये शब्दों का समूह है और उसमें noun है and noun is the main part. We talk about noun only. When we talk about noun phrase, we talk about noun. Noun phrase basically does the work of a noun. Okay? It basically does the work of a noun. That's why it is said that noun acting as the main part. Noun जो है वो main part होता है noun phrase में. ठीक है? For example, a bad man. See this example. A bad man. This is a noun phrase. एक phrase है. एक अधूरा वाक्य है. एक sentence का अधूरा वाक्य है. अगर मैं यहाँ लिखूं he is a bad man, तो सेंटेंस पूरा हो गया. इज द सेंटेंस कंप्लीट? ही इज ए बैड मैन. तो ये ए बैड मैन से ही मैं एक सेंटेंस में बना दिया. ठीक है? तो ए बैड मैन जो है दिस इज बेसिकली अ नाउन फ्रेज. ठीक है? ये नाउन फ्रेज है बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट ए नाउन. किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैन के बारे में. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैन के बारे में. वो मैन कैसा है? बैड है. बैड क्या है? एडजेक्टिव है. एंड ए क्या हो गया? आर्टिकल हो गया. एंड आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर ओनली. सो दिस इज डिटर्मिनर. ओके? इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्लियर? किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ कहना है? इफ यू वांट टू टेल मी एनीथिंग यू कैन टेल मी. ओके? Determiners tell us how many
और हाउ मच अबाउट द नाउन. डिटर्मिनर्स क्या बताता है? नाउन का चर्चा करता है. इट टेल्स अबाउट ए नाउन एंड इट टेल्स हाउ मेनी और हाउ मच ऑफ ए नाउन. ओके, हाउ मेनी ऑरेंजेस, हाउ मच सुगर, ये क्या हुआ? डिटर्मिनर. ठीक है, तो ना हाउ मच सुगर, सुगर क्या हुआ? सुगर क्या हुआ? नाउन हुआ. अगर मैं बोलता हूं हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर, क्वेश्चन है तो मैं पूछता हूं हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर. तो ऑरेंजेस के बारे में क्या बता रहा है? कितना? गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, हाउ मेनी. और जहां अनकाउंटेबल, काउंटेबल है, और जहां अनकाउंटेबल है हाउ मच सुगर इज देयर. शुगर को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं. सो दैट इज, हाँ, उसको माप सकते हैं, उसको शुगर को हम लोग माप सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली विच वी कैनॉट काउंट. ओके, तो जस्ट मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझने के लिए, क्लियर होने के लिए. ओके, क्लियर? So determinants tell us how many or how much about the noun. तो क्लियर हो गया डिटर्मिनर्स क्या बताता है? हाउ मच या हाउ मेनी अबाउट द नाउन. यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड दैट डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव्स. डिटर्मिनर्स आर नॉट एडजेक्टिव्स, माय डियर स्टूडेंट्स. यू मे बी थिंकिंग दैट एडजेक्टिव्स भी क्या करता है? इट क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन. Okay, and determiners also do the same thing. Okay, and basically when there is a noun phrase, determiners basically come before an adjective. जैसे मैंने बोला था he is a good boy, ये हो गया determiner, good हो गया adjective. तो adjective good boy जो हुआ ये phrase हो गया. ठीक है, वो noun जो adjective के साथ आ गया वो phrase हो गया. ठीक है, तो इट मस्ट नॉट बी मिसयूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स. डिटर्मिनर्स आर नेवर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स का एंड नेवर अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव का भी रूप नहीं होता है डिटर्मिनर्स. ठीक है, ये क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल यू सी हाउ मेनी, हाउ मच अबाउट द नाउन डिटर्मिनर्स से. For example, a boy is standing here. A boy is standing here. A boy. A boy. A boy means एक लड़का. So we have put an article. Noun से पहले क्या आ गया है? Article आ गया. Article क्या है? Determiner का ही form है. It is a type of determiner only. We will be studying when I will be teaching you types of determiner. I will be teaching you about articles also. Okay, so a boy is standing here. A boy means एक लड़का. तो यहां पर क्या बताते? बॉय क्या है? बॉय इज ए नाउन. और उसको डिटर्मिन कौन कर रहा है? ए डिटर्मिन कर रहा है. तो दिस बिकम्स डिटर्मिनर. क्लियर? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, now see the next one. An apple a day keeps the doctor away. Apple is a noun, it's clear. And before the noun a determiner has come. What determiner has come? An. Okay, this is also an article. An is also an article. Okay, An apple a day keeps the doctor away. सब कोई जानते हैं एक एप्पल का रोज सेवन करने से वह व्यक्ति डॉक्टर से दूर रह सकता है. मतलब उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा.
अगर रोज एक एप्पल तुम खाओगे तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल्स में वो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमें बीमारी से दूर रखता है, यही मतलब हुआ ना। तो एप्पल यहां नाउन हो गया, और नाउन से पहले एन आया, तो एप्पल को कौन डिटरमिन कर रहा है? एन डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। सो एन इज अ डिटर्मिनर हियर, इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन, द शो वॉज एक्सीलेंट। किसकी बात कर रहे हैं? शो। शो बोलने से कोई फंक्शन वगैरह हो गया, ठीक है, कहीं कोई कंसर्ट हो गया, उसको बोलते हैं शो। कोई भी फंक्शन वगैरह होता है उसको बोला जाता है शो। तो शो क्या हो गया? शो क्या हो गया? शो इज अ नाउन ओवर हियर, एंड व्हाट कम्स बिफोर ए नाउन? द कम्स बिफोर ए नाउन। द इज बेसिकली अ डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, व्हेन आई विल बी टीचिंग यू अबाउट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। ओके, सो इट्स क्लियर, द इज डिटर्मिनर ओवर हियर। नाउ दीज फ्रूट्स आर रॉटन। ये जो फल है सड़े हुए हैं, ठीक है, खराब हो गए हैं। रॉटन मीन्स खराब हो गए हैं, सड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या चीज का बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स। सो फ्रूट्स इज बेसिकली अ नाउन, एंड बिफोर, एंड फ्रूट्स इज प्रीसीडेड बाय, इट इज प्रीसीडेड बाय दिस। सो दिस नाउन से पहले आया है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। टाइप, जब हम डिटर्मिनर के टाइप्स के बारे में पढ़ाएंगे तब हम आप सबको उसकी पूरी जानकारी देंगे। ओके, सो दिस इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर, एंड फ्रूट्स इज नाउन ओवर हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दोज आर माय ड्रेसेस। दोज आर माय ड्रेसेस। यहां पर देखिए, यहां नाउन से पहले कुछ नहीं लगा है, फ्रेज से पहले लगा है। आर माई ड्रेसेस, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली फ्रेज, नाउन फ्रेज। एनपी आई एम राइटिंग ओवर हियर, नाउन फ्रेज। ओके, दोज आर माई ड्रेसेस। आर माई ड्रेसेस क्यों फ्रेज हुआ? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का हिस्सा है, ठीक है, इसीलिए ये फ्रेज हो गया। तो यहां पर फ्रेज से पहले क्या लगा है? दोज लगा है। इसमें नाउन कौन सा है? ड्रेसेस नाउन है। तो नाउन से बिल्कुल पहले नहीं आया है, फ्रेज से पहले आया है, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले आया है, जिसमें नाउन भी है, जिसमें नाउन भी प्रेजेंट है। तो दोज क्या है? दिस इज डिटर्मिनर। दोज क्या है? डिटर्मिनर है। क्यों? बिकॉज इट इज डिटर्मिनिंग अ नाउन फ्रेज। वाई दोज इज अ डिटर्मिनर? बिकॉज दोज इज डिटर्मिनिंग अ नाउन फ्रेज। ओके, आर माई ड्रेसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ डॉग। इज ए डॉग, ये क्या हो गया? दिस बिकम्स नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज हो गया। इज ए डॉग, हम लोग कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, एंड डॉग इज ए नाउन ओवर हियर। डॉग नाउन है, इज ए डॉग हो गया बोल के नाउन फ्रेज हो गया, इट बिकम्स ए फ्रेज। एंड दिस हैज कम ओवर बिफोर इज। ए नाउन फ्रेज से पहले क्या लगा है? दिस लगा है। नाउन फ्रेज से पहले क्या लगा है? दिस लगा है। तो दिस इज डिटर्मिनिंग अ नाउन नेम्ड डॉग। दिस क्या करता है? डिटर्मिन कर रहा है। किसको डिटर्मिन कर रहा है? डॉग का। तो दिस इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज द रेस्टोरेंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यू सी these two words, that is the restaurant I was talking about. Is the restaurant, इज द रेस्टोरेंट क्या हुआ?
नाउन फ्रेज हुआ। हम लोग किसके बात कर रहे हैं? रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है? होटल। हाँ, हम एक रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो फ्रेज हुआ, इससे पहले क्या आ रहा है? इससे पहले क्या लग रहा है? दैट लग रहा है। इस नाउन फ्रेज से पहले क्या लग रहा है? दैट लग रहा है। दैट इज डिटर्मिनिंग अ नाउन फ्रेज, सो दैट बिकम्स अ डिटर्मिनर। क्लियर? There are more examples which I will be explaining to you. Okay. He bought all the dresses. He bought all the dresses. He क्या है? He is a pronoun. Okay. Determiner must not be misunderstood as an adjective or a pronoun. Okay. ये pronoun है. P में लिख देता हूं। जस्ट ये सेंटेंस को क्लियर करने के लिए मैं इसकी भी जानकारी दे रहा हूं। बॉट क्या है? बॉट क्या है? वर्ब है। ओके। ही बॉट ऑल द ड्रेसेस। तो इसमें डिटर्मिनर कौन सा हुआ? ड्रेसेस क्या है? नाउन है। क्लियर? द क्या है? द क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल इज ऑल्सो डिटर्मिनर। आर्टिकल इज ऑल्सो डिटर्मिनर एंड दिस इज बेसिकली अ डेफिनेट आर्टिकल। और इसके पहले ऑल आया है। सारे ड्रेसेस, ऑल द ड्रेसेस, तो ऑल भी डिटर्मिनर है। ठीक है? ऑल क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर हो गया। The words which come before a determiner is a predeterminer. इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। I'll be talking about that. Okay, about predeterminers. Okay, I'll be talking about predeterminers. Don't worry. But our actually the thing is, our concern is to learn about determiners right now, and under determiners, predeterminers also comes. Okay. So I'll be talking about that later. So this is also determiner, this is also determiner. Sari dresses, all the dresses. Okay. Now you see, few people like the movie. Movie is noun. We are talking about the movie. Movie is basically a noun. Okay. Few people like the movie. और people भी noun है। people भी noun है। ठीक है? यहाँ दो डिटर्मिनर है। दो डिटर्मिनर है। द भी डिटर्मिनर है, few भी डिटर्मिनर है, क्योंकि ये दोनों शब्द, दोनों वर्ड्स जो है नाउन से पहले लगा है। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन नहीं है ना? मूवी से पहले द लगा है। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है? फ्यू एक डिटर्मिनर है। ठीक है? फ्यू के बारे में हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ये सब डिटर्मिनर्स हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, आप लोग हम पढ़ाएंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेनी कैट्स लिव हियर। मेनी कैट्स लिव हियर। Many cats live here. ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम? कैट्स की। कैट्स क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या आया है? many. तो many actually determines a noun cat, noun cats. So this is basically a determiner. Many is a determiner. Clear? Now next, where is your house? Where is your house? This is given in question. Okay. Where is your house? House क्या है? This is a noun. Before house क्या आया है? Your आया है. ठीक है?
तो आप क्या कह रहे हैं, योर डिटर्मिनर, डिटर्मिनर है, योर डिटर्मिनर है, प्रोनाउन के जैसा लग रहा है, हाँ, योर प्रोनाउन का जैसा लग रहा है, और ये फ्रेज हो गया यूज योर हाउस, ठीक है। तो वेयर इज बेसिकली अ डिटर्मिनर ओवर हियर, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। WH वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि डिटर्मिनर्स भी होते हैं, उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। नाउ यू सी नेक्स्ट वन, माई फेवरेट कलर इज ब्लैक। ये सेंटेंस देखिए, माई ये पोजीशन बताता है, ठीक है, ये पोजीशन बताता है, यहां भी पोजीशन बताता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो माई क्या बताता है, मेरा पोजीशन, हक बताता है। माई फेवरेट कलर इज ब्लैक, मेरा मनपसंद कलर क्या है, ब्लैक है, मेरा मनपसंद कलर क्या है, ब्लैक है। तो माई क्या होता है, पोजीशन बताता है, हक बताता है, तो ये पॉजिटिव डिटर्मिनर है। बेसिकली हम आपको जब डिटर्मिनर पढ़ाएंगे तो एक के बाद एक क्लियर होते जाएगा। दिस टेल्स अबाउट पोजीशन। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, सो आई विल क्लियर दिस स्लाइड, ओके। माई इज डिटर्मिनर, ओके, इट टेल्स अबाउट पोजीशन, पोजीशन के बारे में बताता, मैंने अपने हक के बारे में, मेरा मनपसंद कलर, ठीक है। व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, हिज क्या बता रहा है, हिज क्या बता रहा है, नेम से पहले आया है, नेम से पहले आया है, हिज नेम। व्हाट मैं WH के बारे में बोला था, ये भी डिटर्मिनर होता है, क्या, उसका नाम क्या है। तो हम जब क्या के बारे में भी आता है, कैसे के बारे में भी आता है, तो भी डिटर्मिनर होता है, ठीक है। सो व्हाट इज डिटर्मिनर ओवर हियर, इट्स आर स्पेशल कार, इट्स आर स्पेशल कार। देखिए आवर क्या है, पोजीशन बताता है हमारा, तो आवर बिकम्स डिटर्मिनर। कैसा कार, स्पेशल कार, स्पेसिफिकली स्पेशल कार के बारे में बता रहा है, कार के बारे में बता रहा है, ठीक है, इस कार के बारे में। टू बॉयज, कार क्या है, नाउन है। टू बॉयज आर वेटिंग फॉर हिम आउटसाइड, हाउ मेनी बॉयज आर वेटिंग, टू बॉयज। तो स्पेसिफिकली नंबर के बारे में डिस्क्राइब करता है डिटर्मिनर। सो टू कम्स बिफोर नाउन बॉयज, ठीक है। तो टू इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर, क्लियर। नाउ यू सी बोथ द किड्स आर क्यूट, दोनों जो बच्चे हैं सुंदर हैं। बोथ क्या है, दोनों के लिए आया। किड्स क्या है, ये नाउन है। इस नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, बोथ। तो बोथ इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यू सी एवरी स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट। कौन से स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। The student is basically a noun over here and it is preceded by every। इससे पहले कौन आया है, क्या वो क्या शब्द है, एवरी। एवरी मीन्स हर एक, एवरी का मतलब क्या हुआ, हर एक। हर एक बच्चे को एक प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करना होगा, हर एक बच्चे, मतलब एक एक करके हर एक बच्चे सारे, ठीक है। तो एवरी इज डिटर्मिनिंग द नाउन स्टूडेंट, so every becomes a determiner over here, okay। So I think some portions of the determiners must be clear, okay। You can now very well understand that determiners are words which comes before a noun or a noun phrase, ठीक है। You can understand, it's clear। So I will be explaining in detail about all these types of determiners in the next class. Thank you.